Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is nomenclature of alcohols. We say what are alcohols? Alcohols are actually the organic compounds which are very much resemble with the structure of water. So we say that they are the derivatives of water. Functional group for alcohol is OH. Okay. Now the structure formula for water is this one. Water, the formula of water is H2O, H2 and O. This oxygen has two lone pair of electron here, and one electron is sharing electron with the electron of hydrogen. Hydrogen also shares one electron with that of one electron of oxygen atom. In this way the bond is formed. So this is the structural formula for water. Now I have said that alcohols are the derivatives of water. It means they have been derived from water. How? In case of alcohol structure formula, the central element is oxygen. On right side, like water, it is bonded with hydrogen. But on left side, instead of H, there is R. There is R. So this is the structure formula for alcohol, ROH. Okay, this is the structure formula for alcohol. Now what is R? We say that R जो है, it is an alkyl group. It may be methyl, it may be ethyl, it may be propyl, etc. So if suppose that R, instead of R I am writing here CH3, H. Now what will be the name of this alcohol? The common name of this alcohol is methyl alcohol. And if suppose I take ethyl C2H5 and then H. So C2H5OH, the common name of this alcohol will be ethyl alcohol. It means while naming the alcohol, their common names, first of all write um, R group or alkyl group and the name of alcohol at the end. इसी तरह से मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल आते हैं ये हमारे पास एलिफेटिक एल्कोहल है नॉट एरोमेटिक बिकॉज नो रिंग इज इन्वॉल्व इन दिस केस suppose R instead of methyl ethyl propyl I am taking the example of benzene से benzyl alcohol. What happened in that case? The formula is for aromatic alcohol is C6H5 benzene से benzyl OH benzyl alcohol. अब हम पूछ सकते हैं कि ये benzyl हमारे पास कैसे आया. You know about the structure for benzene. The structure of benzene is such that it is a closed structure, ring-like structure having 6 carbons. 6 carbons, and there are alternate double bond, single, double, single, and double bond, and each carbon is attached with one hydrogen atom. So this is the structure formula for benzene. अब अगर मैं इसका
एक जो है बेंजीन से, अब इसका एक अगर मैं निकाल देती हूँ हाइड्रोजन कोई सी भी, तो ज़ाहिर बात है क्या हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर बच जाएगा। ये इसका फार्मूला है C6H6 एंड व्हेन आई रिमूव्ड one hydrogen it became C6H5 and the name of this alkyl group is phenyl। तो यही हमारे पास R ग्रुप है C6H5 phenyl and OH। It is called as phenyl alcohol। This is the case of aromatic alcohol, phenyl alcohol। Now these were the examples for common names कि common names जो हैं अल्कोहल के वो किस तरह के होते हैं। Now we come to another system, that is naming the alcohol according to IUPAC system। According to IUPAC system, IUPAC से आप कैसे नाम देंगे? ये आपने जो ऊपर नाम दिए हैं यहाँ से, ये थे हमारे पास कॉमन नेम्स। कि कॉमन नेम्स हैं एंड IUPAC सिस्टम से देखते हैं क्या बनता है। अगेन I am writing the simplest formula CH3OH। Its common name was methyl alcohol, but according to IUPAC system, wherever there is OH group or alcohol group, the name ends at OL। इसको कैसे करेंगे? मिथाइल से it will be methanol, methanol OL आएगा ये। इसी तरह से if it is CH3CH2OH, you know that what is CH3CH2, ये C2H5 है and it is ethyl। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। This is ethyl alcohol, its common name, but according to IUPAC it will be from ethyl to ethanol। एथनोल NOL, यहाँ AL नहीं लिखेंगे, AL जो है वो एंड होता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड का नाम हम लिखते हैं ना वो आगे जाके एथनॉल, प्रोपानॉल, AL एंड होता है, बट इन केस ऑफ अल्कोहल द नेम एंड्स एट OL। ये इसकी पहचान है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, कर लें एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, यूँ कर लें बेशक, और साथ OH। सेटिस्फाई करें वैलेंसीज को, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है, 1 with this carbon, 2 this hydrogen, 3rd with this hydrogen, 4th with this hydrogen। This carbon is forming 2 bonds with these 2 carbon, 3rd with these 2 hydrogen। Similar is the case here। तो ये हमारे पास 3 वाली के C3 और ये 4 5 6 7। तो C3H7 क्या होता है हमारे पास? प्रोपेन से प्रोपाइल। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोपाइल वो कॉमन नेम बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इट विल बी प्रोपानॉल, indicating that it is from here we just represent that it is alcohol, and from this side it is represented that there are 3 carbon atoms in the chain। तो 3 carbon atoms वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेन से प्रोपानॉल। सो OL stands for alcoholic group। इसके बाद जनाब हम देख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ, हमारे पास आ जाएगा क्लासिफिकेशन फॉर अल्कोहल। वो कैसे हम क्लासिफाई करेंगे?
क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो हमारे पास आती है 2 टाइप्स की। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नो व्हाट इज मोनोहाइड्रिक? मोनो जो नाम है इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वन, इसका मतलब होता है वन, एंड हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। So those alcohol which consist of only one OH group, ऐसी अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप हो, such alcohols are said to be as monohydric alcohol। और इसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाती है, सेकेंडरी भी इसी के एग्जाम्पल है, एंड टर्शरी अल्कोहल is also the example of monohydric alcohol. Now what is a primary alcohol? Primary alcohol means when hydroxyl group or OH of alcohol is attached with that carbon atom which is further attached with only one carbon atom directly. Such alcohol is said to be as primary alcohol. अब इसकी वैलेंसीज भी पुट कर सकते हैं, आप लिख लें। ये CH3CH2OH आ गया हमारे पास। प्राइमरी अल्कोहल एथेनॉल, it is a case of monohydric alcohol. Now in case of secondary alcohol means when OH group or alcoholic group is attached to that carbon atom, एक ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है which is further attached with two carbon atom, ये 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, CH कर लें। This alcohol is said to be as secondary alcohol. In case of secondary, OH is attached to that carbon atom which is further attached directly with 2 carbon atoms. ये हमारे पास आइसो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसका नाम। Then comes tertiary alcohol. Now what is tertiary alcohol? Tertiary alcohol means when OH of alcohol is attached to that carbon atom which is further attached with 3 carbon atoms again. दोबारा हमारे पास alkyl group आ जाता है CH3. So in this case when alcohol is attached with that carbon atom which is further attached directly with 3 carbon atoms, such alcohol is called as tertiary alcohol. इसको हम क्या कहते हैं? tertiary alcohol। और नेम इसका वैसे हमारे पास आता है 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटाइल, यूँ लिखें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये तमाम जो हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये तमाम की तमाम अल्कोहल्स आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि हर एक केस में सिर्फ आपने फार्मूला में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा है, कहीं भी दो दो इकट्ठे अटैच नहीं हुए हुए। सो दिस इज़ द केस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नो कम टूवर्ड्स दिस साइड, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। What is the meaning of poly? Poly means many, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों, यानी 1 से ज़्यादा हों जिस अल्कोहल में, वो कहलाएंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसकी हम एग्जांपल दे देते हैं से
A hydrocarbon consisting of 3 carbon atoms. It is propane. प्रोपेन और हम यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर लेते हैं और वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई कर लें CH3 चलें कर देते हैं CH आ जाएगा और यहाँ पर H2C ठीक है. Now here there are 2 hydroxyl group or OH group. So what will be the name of this alcohol? The name of this alcohol will be 1,2-dihydroxypropane. यूँ भी आप कर सकते हैं 1 2 यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना OH 1 2 और 3 लॉन्गेस्ट चेन. उसके बाद हम देखते हैं कि 1 पोजीशन पर भी OH ग्रुप है अल्कोहल है 2 पोजीशन पर भी अल्कोहल है तो इसकी कई नाम बनेंगे. एक हम कह सकते हैं 1,2-dihydroxypropane सिंपल. और दूसरा जो इसका नाम है दैट इज़ प्रोपाइलीन. व्हाट इज़ द नेम? प्रोपाइलीन. और कॉमन नेम जो इसका हमारे पास आता है दैट इज़ ग्लाइकोल. इट इज़ एक्चुअली ग्लाइकोल. देन टेक एन अदर एग्जाम्पल 1 2 and 3 carbon atoms propane and there are 3 hydroxyl group. So this will be said to be as 1 2 3 propane triol. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 propane triol. Triol mean hydroxyl group. Tri mean 3. There are 3 hydroxyl group at position number 1 2 and 3. और इसका जो हमारे पास कॉमन नेम आता है ये 1 2 3 जो है ये अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम है. ये मैंने आपको IUPAC सिस्टम के बताया. इट्स कॉमन नेम इज़ ग्लिसरोल या ग्लाइसरोल कह लें. इट्स कॉमन नेम इज़ ग्लिसरोल. अच्छा जी, अब थोड़ी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर हो राइट या लेफ़्ट पे जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के केस में है. टेक एन अदर एग्जांपल 1 2 3 4. No. What will be the name of this organic compound? The rule is first of all select the longest continuous carbon chain. अब longest chain तो सिर्फ यही है only of 4 carbon atoms. The basic functional group here is OH giving them the least possible number. यहाँ से start करें तो 1 2 3 and 4 OH group comes at position number 2. And if I start from left side 1 2 3 the position will become 3. तो हमने लोएस्ट लेना है तो ये जो है राइट साइड पे जो हमने नंबरिंग की है वो ज़्यादा करेक्ट है. अब इसका नाम क्या होगा? 2 पोजीशन पर हमारे पास अल्कोहल है एंड दिट इज़ ब्यूटेन. ब्यूटेन से हमारे पास बनता है ब्यूटानोल. ब्यूटानोल NOL. OL stands for alcohol and there is OL is at position number 2, so the name will be 2-butanol. Okay. एक और एग्जांपल ले लें आप. CH2 और CH2 there are again 2 hydroxyl group. इसको हम कैसे करेंगे नेमिंग? 1 select the longest continuous carbon chain. 2
तो ये हमारे पास आ जाता है 1 2, द नेम विल बी 1 2, पहले पोजीशन बताते हैं, उसके बाद टोटल कितनी कार्बन है 2, तो क्या आएगा, और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है 1 2 इथेन, इथेन एंड 2 OH ग्रुप हैं, तो 1 2 3 इथेन डाई ओल। ठीक है, इसी तरह से हम कर लेते हैं CCC, ये लें OH मोर देन 2 है, ये पॉलीहाइड्रिक की एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी आप खुद ही सेटिस्फाई कर लीजिएगा। द नेम ऑफ दिस अल्कोहल विल बी, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एक ही है हमारे पास, गिविंग OH ग्रुप द लीस्ट पॉसिबल नंबर, वो भी सही है। तो अब पोजीशन हम पहले लिखेंगे 1 2 3, then the name of hydrocarbon, that is propane, 1 2 3 propane, propane how many OH group, 3, triol, tri means 3, ol means hydroxyl group, it means there are 3 hydroxyl group, ये आपने देखना है, ये OL है, there are 3 hydroxyl group present at position number 1, second and at position number 3। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा फार्मूला आता है जिसमें कि डबल बॉन्ड भी हो और साथ में हमारे पास अल्कोहल भी हो, तो वो फिर हम क्या करेंगे इन दैट केस। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो पोजीशन नंबर 4 पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 3 पर हमारे पास डबल बॉन्ड। जबकि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा करेक्ट वे है, 1 2 3 and 4, it means total carbons are 4 and there is a double bond at position number 2, so the name will be 2 butane के बजाय हम लिखेंगे 2 butene, because you know that E and E stands for double bond, यहाँ ब्यूटेन के बजाय अब ब्यूटीन हो जाएगा, 2 butene and there is 1 OH group, so 2 butene 1 ol। दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटानॉल, नो, ऑलरेडी बता चुके हैं आप कि कितनी हाइड्रोकार्बन है, सो द नेम विल बी 2 ब्यूटीन 1 ओल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, CH3 CH C double bond OH and here is a hydroxyl group and this is the formula for lactic acid। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, लैक्टिक एसिड उसका फार्मूला लिखें, या MCQs में आ जाते हैं। अब लैक्टिक एसिड है तो हमने स्टार्ट करनी है नंबरिंग। हमारे पास इस वक्त एक्चुअली 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स आए हुए हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, हुज नेम एंड एट OIC, जिसका नाम OIC पे एंड करता है, and there is another functional group that is alcohol hydroxyl। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ करीब करीब पड़े। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, इट मीन्स एक फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पर है, एक 3 पे, जो कि गलत है। हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, अदर एट पोजीशन नंबर 2 और फिर 3। और प्रियोरिटी भी देते हैं हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रियोरिटी दी जाती है। सो द नेम ऑफ दिस
organic compound will be 2-hydroxy 2-hydroxy और आगे 3 हमारे पास कार्बन्स हैं, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक, अब आप ये देख रहे हैं, प्रोपानोइक ओ आई सी स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिड होते हैं ना उनका नेम एंड करता है इस पर, ओ आई सी पर। तो दिस इज़ 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड और इसका कॉमन नेम क्या है? लैक्टिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल अगर कर लें लास्ट में, वो हमारे पास आ जाता है 2-कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, and these 2-carboxylic acid are linked with 1 carbon atom, and this carbon atom जो है it is directly linked with OH group। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग बिल्कुल वैसे जैसे हम करते आए हैं, select the longest continuous carbon chain and giving the functional group the least possible number। ये हमारे टर्मिनल पोजीशन पर आ रहा है 1, 2, 3 and 4। It means that there is a hydroxyl group at position number 2 and there is a hydroxyl group at position number 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2,3-dihydroxy, name will be 2,3-dihydroxy 2,3-dihydroxy। फिर 1 और 4 पर हमारे पास आ रहा है 1,4 ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक किस लिए कहा है? बिकॉज देयर आर 4 कार्बन एटम्स and the name ends at OIC। So 2,3-dihydroxy 1,4-butanoic acid। तो ये सिंपलेस्ट थी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। थैंक यू।